So students, theoretical concept complete करने के बाद now we are ready to note down some important questions related to this chapter number 14, class 8 science. Okay, so let's see what are the important questions. We are first going to discuss some MCQ type questions which are very important and given in your textbook, and some higher order skills questions. Then we will discuss about other questions. So let me note down the first question and you should try the answer by yourself. So the first question that is collected from your book is: an electric current can produce an electric current can produce. Now what are your answers? So options are given here, so you have to choose the correct answer. Okay, there is only one option is correct. So the first option is heating effect only. So this one is question number 1. Option number is heating effect only. Option number 2, that is B, is chemical effect only. Third option is, that is option number C, is magnetic effect only. And the last option, that is option number D, is chemical heating magnetic effect, means all of the above. Okay, so you can see the question: an electric current can produce. So student, when we study the chapter, the theoretical concept, we discussed there that an electric current can produce heating effect. Examples or the applications of that that heating effect is जैसे कि आयरन करते हैं, आप कपड़े को आयरन करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है. जो बल्ब थे हमारे इंडिकेसेंट बल्ब जो थे, जो कि टंगस्टन, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट लगता था, वो भी हीटिंग इफेक्ट से ही वो लाइट देता था वहाँ पे. तो ये सब हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं. केमिकल इफेक्ट की बात करें तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट का. इट मीन्स करंट हीटिंग इफेक्ट भी दिखाता है, केमिकल इफेक्ट भी शो करता है. मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, एक सर्किट है उसमें अगर करंट पास कर रही है और उसके बाद आप कंपास नीडल रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहाँ पे होता है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, केमिकल इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है. सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीटिंग, केमिकल, मैग्नेटिक सारे इफेक्ट शो करता है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द इफेक्ट मेंशन अबव, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, chemical effect and magnetic effect all. Okay, so this one is the correct answer for this question. Now we are ready to solve the second question. So I am going to erase this one and I am going to write the second question. So you should note down the question and its answer, because these questions are very important. So let's see the second question. Second question is: Bujo's uncle has said
हैज set up an electroplating factory. Electroplating factory near his village. He should dispose of the waste of the factory. He should dispose. He should dispose of the waste सो कहाँ डिस्पोज करना चाहिए, ये क्वेश्चन है. बुझोज अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज. ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री. कहाँ डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? सो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो है इन द नियर बाय द रिवर. इन द नियर बाय रिवर. सेकेंड ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इन द नियर बाय पॉन्ड. सी ऑप्शन है इन द नियर बाय कॉर्नफील्ड. एंड लास्ट है अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी. according to the disposal guideline according to disposal guideline of local authority. So let me repeat the question. Bujo's uncle had set up an electroplating factory near his village, and he should dispose of the waste of the factory. First one is in the nearby river, second one is in the nearby pond, third one in the nearby cornfield, and last one is according to the disposal guideline of the local authority. So I hope you all know the answer of this question, and the correct option is the option number D, because the guideline, जब भी कोई अथॉरिटी गाइडलाइन जारी करती है या गाइडलाइन कोई होती है उसकी, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हो उससे किसी को भी किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता हो. अगर आप डायरेक्ट रिवर में केमिकल्स को डाल देते हैं तो इससे वाटर पोल्यूशन होगा. पॉन्ड में भी सेम कंडीशन है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, जिससे हमारा जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है. सिमिलरली पॉन्ड में भी होगा. कॉर्नफील्ड में भी सेम कंडीशन है. कॉर्नफील्ड एक फील्ड होगा जहाँ पे कि क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता होगा, जनरली वहाँ पे कॉर्नफील्ड है तो इसी का किया जाता होगा. तो यहाँ भी अगर आप इस तरह के वेस्ट केमिकल्स जो यूज़ करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होने के चांसेस हैं, जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स हैं उस पर काफ़ी प्रॉब्लम होगी उनके प्रोडक्शन में. लेकिन जो ये ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल गाइडलाइन ऑफ द नियर बाई अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉरी, लोकल अथॉरिटी, क्योंकि जो भी लोकल अथॉरिटी है वो जो गाइडलाइन बनाती है वो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह का किसी को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो उन सभी जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी.
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड through a conducting solution, there is a change of color in the solution. This indicates तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर इन द सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट्स। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट को प्रेजेंट करता है। बी है ऑप्शन मैग्नेटिक इफेक्ट। सी ऑप्शन है लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट। एंड लास्ट है, लास्ट ऑप्शन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? करंट पास करती है, वायर को हीट कर देती है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? वायर के अंदर से करंट पास करती है, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। लाइटनिंग इफेक्ट में क्या होता है? करंट पास करती है, बल्ब ग्लो करता है, जैसे एलईडी हुआ, या कोई आपके पास जो इंडिकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें कि टंगस्टन वायर लगा होता है। तो इन इफेक्ट को देखा। केमिकल इफेक्ट क्या है? केमिकल इफेक्ट में काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें से एक इफेक्ट ये भी होता है कि जब किसी कलर्ड सोल्यूशन से ये पास करता है तो ये सोल्यूशन के कलर को चेंज कर देता था। तो यहाँ पे देखिए उसी बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ए बी सी, ये कलर को चेंज नहीं करते, बट ये जो कलर चेंज होता है करंट की वजह से उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जब भी ऑप्शंस को पढ़िए तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ होता है उसको एक बार माइंड में रिकॉल जरूर करिए। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है, लाइटनिंग इफेक्ट कैसे होता है, इन चीज़ों को रिकॉल जरूर करिए माइंड में, ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी सोल्यूशन से, कंडक्टिंग सोल्यूशन है, उसके अंदर से करंट पास करती है तो उसके कलर में चेंज होता था। ये कौन से इफेक्ट में होता है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है करंट जब केमिकल इफेक्ट शो करती है तो क्या होता है। इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जब किसी कलर सोल्यूशन से वो पास करती है तो उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हो, ऐसा नहीं कि सारे सोल्यूशन का कलर चेंज करेगा, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, कलर चेंज हुआ, तो वो कौन से टाइप का इफेक्ट होगा? तो उसका आंसर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा।
राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल करना है ब्लैंक्स में। हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो ये द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज, द ऑब्जेक्ट टू बी electroplated is taken as। अब यहाँ पे आपको फील करना है करेक्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज, तो जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसा लेते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसा लेते हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी फील करना है उसको फील करने से पहले आपको देखना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपको याद है रिवाइज करिए कि जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी जिसके ऊपर, उसे कहाँ पे कनेक्ट किया गया था, नेगेटिव टर्मिनल पे या पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो आप उसको चेक करेंगे और आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो चेक करिए और बताइए कि कहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए इसको। तो देखिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जिस मटेरियल की कोटिंग करनी थी उसको, जैसे कि अगर सिल्वर की करनी थी, एजी सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे एजी कैपिटल ए और स्मॉल जी लिखा है, इसका मतलब सिल्वर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए एक स्पून है या फिर कोई और मटेरियल है, जैसे कि अब इस मटेरियल की सपोज ये स्पून है, इसके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है। ठीक है, ये स्टील का है, तो ये यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जब करंट यहाँ पे की लगाते थे, जैसे इस की को क्लोज करते हैं इसमें करंट पास करना स्टार्ट होती है। ये जो एजी होता है, ये सिल्वर इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ध्यान देखिए इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है और इसी टर्मिनल को कैथोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कैथोड। ठीक है, इस केस में आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैथोड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज,
आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुत सारे वैसे तो एप्लीकेशन है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ कर सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे? मोस्ट कॉमन दिया है, बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि कलर भी चेंज करना है, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको बताया गया था वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यही हो गया आंसर आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया आपका आंसर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस ब्लैंक। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू रेज दी। सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का ये सब। नेक्स्ट है सी, या फिर इसको क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड है। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ mineral salt present naturally in water makes it a यहाँ पे आपको फील करना है। उसके बाद दिया हुआ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर मेक्स इट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, क्या फील कर सकते हैं आप? सोचिए क्या यहाँ पे सही क्या लिख सकते हैं। जब किसी वाटर में अगर थोड़ा सॉल्ट मिला दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा, क्या होगा? इंसुलेटर होगा, जो कुछ भी होगा। तो अभी आपको बता दिया, आप सही लिखेंगे। तो आई एम श्योर कि आप लिखेंगे गुड कंडक्टर, या सिर्फ कंडक्टर भी लिखेंगे तो चलेगा। गुड कंडक्टर लिख सकते हैं आप, गुड कंडक्टर, या फिर ओनली कंडक्टर। यू कैन यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो फील करने लायक है वो है कंडक्टर, या फिर गुड कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अब यहाँ पे फील करना है आपको। अब आगे लिखते हैं इज डन ऑन ऑब्जेक्ट, इज डन ऑन ऑब्जेक्ट like water tap and cycle bell, like water taps, इसके बाद है साइकिल बेल, to give them a shiny appearance, to give them a shiny appearance, shiny appearance। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ इज डन ऑन ऑब्जेक्ट लाइक वाटर टैप्स, साइकिल बेल टू गिव देम अ शाइनी अपीयरेंस। तो यहाँ पे उस मटेरियल का नेम बताना है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं
इन टैप्स या फिर इन बेल के ऊपर, जिससे कि क्या हो, वो शाइनी दिखने लगे, उसका सरफेस क्या हो, शाइनी हो जाए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब लास्ट आपको पढ़ाया गया था, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे बताया था कौन सी केस में कौन सी मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसे कि वाटर पाइप अगर है, मान लीजिए कि वाटर पाइप है जिसके अंदर से वाटर पास कराते हैं, उसके उस पर कौन से मटेरियल की कोटिंग कराते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया था जिंक का कराते हैं। और वहीं पे आपको बताया गया था कि जब कभी कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो जैसे कि साइकिल बेल है, वाटर टैप है, इनको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए, साइकिल का हैंडल भी होता है, तो शाइनी अपीयरेंस देने के लिए उन पे कौन से मेटल की कोटिंग कराते हैं, ये आपको वहीं पे बताया गया हुआ है वहाँ पे। तो देख लीजिए, इसका आंसर जो होता है वो होता है क्रोमियम। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर याद था और आप इसको ज़रूर अपने से कर लिए होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, इसका सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक एलिमेंट है। ठीक है। एक मटेरियल है जिसकी कोटिंग करके सरफेसेस को शाइन बनाते हैं। ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है हमारा क्रोमियम। तो ये देखिए, ये क्रोमियम है, इसी मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, साइकिल बेल और वाटर टैप के सरफेसेस को शाइनी अपीयरेंस देने के लिए। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें ना तो फिल इन द ब्लैंक्स है और ना ही चॉइस है, आपको आंसर डायरेक्ट बताना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द इफेक्ट ऑफ करंट name the effect of current responsible for the glow of the bulb in an electric circuit। तो यहाँ पे देखिए नेम बताना है उस करंट इफेक्ट का, नेम द इफेक्ट ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ बल्ब इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उस करंट इफेक्ट का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन है, अब देखिए करंट के कौन कौन से इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं, पहले उसको सोच लीजिए। देखिए करंट के आपके केमिकल इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। अब ये 3 इफेक्ट है यहाँ पे करंट के, इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाला इफेक्ट है जिस जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लो ऑफ बल्ब के लिए। तो आपका सही आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि दिया हुआ है नेम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो ऑफ द बल्ब। ये देखिए बल्ब ग्लो करने के लिए कौन सा इफेक्ट है, तो उसका सही आंसर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सही आंसर है। तो आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट की वजह से ऐसा नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। सबसे पहले देखिए कौन कौन से इफेक्ट है आपके पास,
हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल है। उनमें से ग्लो ऑफ बल्ब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ओके देन, सो हम लोग कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे।